आदाब, नमस्कार। केसर टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर हसन आप सभी के साथ। जम्मू कश्मीर असेंबली में सीएम उमर अब्दुल्ला ने यूटी का पहला बजट पेश किया और इस दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला ने कई बड़े ऐलानात भी किए। बजट पेश करते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने अपने बड़े इंतखाबी वादे का जिक्र भी किया। जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ी राहत देने की कोशिश की और बजट के दौरान उमर अब्दुल्ला ने गरीबों के लिए मुफ्त राशन स्कीम को 1 अप्रैल से नाफिज करने का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने गरीबों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की भी बात कही। उमर अब्दुल्ला ने ख्वातीन और नौजवानों के लिए कई बड़े ऐलानात किए और साथ ही ख्वातीन के लिए 1 अप्रैल से मुफ्त सफ़र का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से ख्वातीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुफ्त सफ़र कर सकेंगी और एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज़म, रोड, हाईवे, पावर डेवलपमेंट, इसके अलावा दीगर चीज़ों को फ़रोग़ देने पर तवज्जो देने की यकीन दहानी कराई गई और बागबानी, ज़राअत पर भी ख़ास तवज्जो देने की बात कही गई है। उमर अब्दुल्ला ने कई सारे ऐलानात किए हैं जो जम्मू कश्मीर के हित में हैं, लेकिन सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं। Public distribution system. Smart PDS will be implemented in 25-26 to enhance service delivery, prevent leakages, and ensure fair and transparent distribution of essential commodities across Jammu and Kashmir. As an additional measure of social security, I propose free ration of 10 kgs per person to all AAY beneficiaries starting April 1st, 2025 to enhance nutritional support for the most vulnerable. Our government is committed to ensuring safety and support for women through Sakhi Niwas and Shakti Sadan initiatives to provide secure accommodation for working women and those pursuing education or training. 5 new Sakhi Niwas will be established in Srinagar, Anantnag, Baramulla, Kathua and Rajouri. On the eve of International Women's Day, our government is proud to announce a transformative initiative to empower women and promote economic inclusion. I propose, starting from 1st April 2025, all women in Jammu and Kashmir will be granted free ridership on government-owned transport in Jammu and Kashmir will be granted free ridership on government-owned public transport, including e-buses. To provide financial relief and energy security to the most vulnerable, I propose to provide 200 units of free electricity to all AAY families in Jammu and Kashmir, integrated with the PM Surya Ghar Bijli Yojana. Combating the drug menace remains a top priority of our government. De-addiction infrastructure is in place across all 20 districts and will be made fully operational. So far, 377 panchayats have been declared Nasha Mukt, with efforts underway to make J&K entirely drug-free. Awareness campaigns are being conducted in villages, schools and colleges. Strict action, including the seizure of contraband and property, will be taken against drug peddlers to safeguard the youth from this threat. Our government will be establishing national centers of excellence for water sports at Dal Lake in Srinagar and Basoli in Jammu, providing state-of-the-art training facilities for water sports enthusiasts. A gymnastics academy will be set up at Gindun Rajbagh and Khelgaon Nagrota, ensuring specialized coaching for budding gymnasts. To nurture young cricketing talent, 4 state-of-the-art cricket academies will be established with a budgetary allocation of 8 crores. Additionally, two new youth hostels, one each in Jammu and Kashmir divisions, will be constructed with a provision of 10 crores. We will provide 200 sheep units and develop 10 milk villages in the coming year. These initiatives will ensure greater inclusion and empowerment for our tribal communities. I propose an enhancement in pensions amounting to 10,07,324 individuals across Jammu and Kashmir. 1,250 per month for persons below 60 years of age
1,500 per month for persons aged between 60 and below 80 years, and 2,000 per month for persons aged over 80 and above. One of the key challenges we face is the gap between the cost of power supply and revenue collection. While the average cost per unit is 7 rupees, we recover only 2 rupees 50 paisa due to systemic inefficiencies, high losses and low tariffs. To bridge this gap, our government is implementing 100% smart metering, strengthening billing and collection mechanisms, and modernizing the entire distribution network. Our government expresses heartfelt gratitude to the Honorable Prime Minister and the Government of India for their unwavering support through the Prime Minister's Development Package, or PMDP 2015. This transformative initiative has strengthened infrastructure and boosted economic growth in Jammu and Kashmir. बजट बहुत ही अच्छा था, इसने हर चीज को कवर किया है, दोनों जम्मू और कश्मीर को कवर किया है, यहाँ के एजुकेशन सेक्टर को कवर किया है, हेल्थ सेक्टर को कवर किया है, टूरिज्म सेक्टर को कवर किया है, कोई भी सेक्टर छोड़ा नहीं गया। जो पॉवर्टी लाइन से नीचे उनके बारे में भी सोचा गया है, उनके लिए भी किया गया है, और पावर सेक्टर के लिए किया गया है। बहुत अच्छी बात है, राशन वगैरह सबके लिए मैं समझता हूँ कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ा गया, और हम उम्मीद करते हैं इस बजट से लोगों को राहत मिलेगी। मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत मुबारकबाद के हकदार है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, जो इन्होंने ये कदम आज उठाया है, जो मेरे ख्याल से शायद ही कभी जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में ये हुआ है। जो आज उन्होंने हर तबके को, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो बहनों के बारे में हो, मैरिज असिस्टेंस हो, ओल्ड एज विडो पेंशन हो, राशन के बारे में, बिजली के बारे में, एक इतना बड़ा कदम जो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब ही ये कर सकते हैं, जो उन्होंने करके दिखाया। Between their promises and their policies, there's a huge gap, और खासकर चाहे वो डेली वेजेस के मसले हो, चाहे एम्प्लॉयज के हो, चाहे हेल्थ सेक्टर के हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट के हो, या डेवलपमेंट के रिलेटेड जो इश्यूज है, या इन्होंने फॉर एग्जांपल बात की पब्लिक सर्विस, ये जो फ्री बसेस सर्विस फॉर वीमेन, आप तब देंगे जब पहले बसेस है, बसेस ही नहीं है अवेलेबल। पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट में 2 भी बसेस नहीं है, तो फ्री में कौन चढ़ेगा, कहाँ से चढ़ेगा? जब बस आप अवेलेबल करेंगे तभी फ्री में इस्तेमाल कर सकता है। आपने इलेक्शन से पहले बोला 200 यूनिट सबको फ्री मिलेंगे। सीधा सुनाते हैं, उमर अब्दुल्ला इस वक्त मीडिया से खिताब कर रहे हैं, आपको सुनाते हैं। ये जम्मू कश्मीर के लिए एक बेहतरीन शुरुआत है, और मेरी और मेरे साथियों की, हमारी हुकूमत की लगातार कोशिश रहेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस इलेक्शन में हिस्सा लेने का भरपूर फायदा हासिल हो। तो ये कहते हुए मैं डायरेक्ट इंफॉर्मेशन साहब से कह दूंगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाएं। Thank you, sir. Before opening the floor for the questions, I request all the media persons to kindly introduce yourself and the organization you belong to before asking a question. Also, please keep your questions brief and kindly limit yourself to one question. So now I open the floor for questions. So from here, sir. Good evening, sir. This is Shruti Smita from Greater Kashmir. Sir, my question is related to what you are in your maiden budget. You are focusing, you are putting more premium on crops economy, are creating assets in the form of industrial units. Sorry, you'll have to speak a little slowly. I didn't hear you. You are putting more emphasis on? Sir, you are putting more premium on what? Agri economy or crops economy? Are creating assets in the form of industrial units in your major budget. What is your focus? Agri-economic crops. Oh, okay. No, our emphasis is not on one particular sector. Our emphasis is on taking J&K forward in a balanced manner.
focusing on asset creation, focusing on improving the economy. In improving the economy, we want to focus on all three sides. The primary sector of the economy, the secondary sector, and the tertiary sector. So that means manufacturing, services. We have looked at all of these. I talked about growing the industrial base of Jammu and Kashmir, starting and expanding our industrial manufacturing areas. I have talked about the startup policy and giving a boost to entrepreneurship. There's also a renewed focus on agriculture and horticulture. Tourism is a major sector of our economy. We are looking to grow tourism arrivals both in Kashmir as well as in Jammu. Horticulture, of course, is an important facet of our economy. So it would be wrong on anybody's part, including mine, to make the case that we are focused purely on one part of the economy. That is on the economic side. On the governance side, as I said, there are initiatives for improved governance, for asset creation, and for improving the social network, the social net that is available to our weakest sections of society. Question from there. Hello, I am Anil Bhatt from PTI. Umar Saab, you have showcased a lot more programs in your budget. One important factor that we generally talk about is the agriculture or tourism-based economy of J&K. But never has the focus gone to the hydropower, which is the biggest economy in terms of, in fact, it can be 20,000 crores economy for J&K. You have spelled the new hydropower policy for this thing. Can you specific about the projects, particularly private projects? Actually, in my budget speech. तो फिलहाल इकोनॉमिक में जिस तरीके से इस बजट में जिन जिन चीज़ों पे ध्यान दिया गया है उसके हवाले से क्वेश्चन आंसर का ये सेशन चल रहा था जहां पे उमर अब्दुल्ला सभी का जवाब दे रहे थे। लेकिन इस बजट पे कई सारे सवाल भी उठाए गए हैं और उन सवालों का जवाब भी यकीनन वक्तन फ़ौक्तन दिया जाता रहेगा। लेकिन वो सवाल कौन कौन से हैं, किस तरह के सवाल हैं, वो आपको सुनाते हैं। Between their promises and their policies, there's a huge gap. और खासकर चाहे वो डेली वेजेस के मसले हो, चाहे एम्प्लॉयज़ के हो, चाहे हेल्थ सेक्टर के हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट के हो, या डेवलपमेंट के रिलेटेड जो इश्यूज है, या इन्होंने फॉर एग्जांपल बात की पब्लिक सर्विस, ये जो फ्री बसेस सर्विस फॉर वीमेन, आप तब देंगे जब पहले बसेस है, बसेस ही नहीं है अवेलेबल। पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट में 2 भी बसेस नहीं है, तो फ्री में कौन चढ़ेगा, कहाँ से चढ़ेगा? जब बस आप अवेलेबल करेंगे तभी फ्री में इस्तेमाल कर सकता है। आपने इलेक्शन से पहले बोला 200 यूनिट सबको फ्री मिलेंगे, अब आपने बोला AAY को मिलेंगे। AAY के राशन कार्ड आपने चेंज किए, फिर इसमें राइडर लगाया जिसके घर में और सोलर सिस्टम्स होंगे, तो उसमें उसके लिए लोगों के पास पैसा कहाँ है इस वक्त। आई थिंक देयर आर प्रेसिंग, हम चाहते थे कि एक फ्री एमनेस्टी मिले, कम से कम वन टाइम एमनेस्टी फॉर ऑल लाइबिलिटी, जो बिजली का लाइबिलिटी लोगों को है, उस तरीके में लोगों को लगता था पीपल्स बजट होगी। वी अंडरस्टैंड दे आर अंडर गोइंग चैलेंजेस, इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, बट इट लुक्स लाइक मोर ऑफ एन एलोकेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। लगता है कि एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी, सरकार को एक फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। जो लोगों को उम्मीदें थी, खासकर गरीब लोगों को, नौजवानों को, डेली वेजर्स को, उनकी जो उम्मीदें हैं उन पे पानी फेरा गया और इस बजट में उनके लिए कुछ था नहीं। तो बाकी जो सबसे बड़ा वादा जो सरकार ने किया था कि 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी हम दे देंगे, उसमें भी आप देख सकते हैं कि उसमें कंडीशनल ये है कि AAY कैटेगरी, और AAY कैटेगरी में भी इन्होंने पहले 2 महीने तक एक एक्सरसाइज की कि लोगों को उस कैटेगरी से डिलीट करवाया। अब जो बचे कुछ AAY है उनके लिए भी कंडीशंस आप देख लीजिए कि उनको पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद PM सूर्य मुफ्त बिजली योजना, यानी कि उनको जो है इसमें भी कोई फायदा नहीं मिलना। इसको इट कैन बी टर्म्ड एज ए प्रो पीपल बजट एंड मोस्टली इसमें जितने भी सोशल सेक्टर्स हैं, दो सोशल सेक्टर्स हैव बीन टच्ड, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में भी थे, हमारे मैनिफेस्टो में भी थे, एंड जो एस्पायरेशंस लोगों की हैं वो बाय एंड लार्ज वो एस्पायरेशंस जो हैं वो फुलफिल हो। AAY इज द लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ, दे आर कॉल्ड एज पोरेस्ट ऑफ द पोअर, सो
ऑफ कोर्स दिस फैसिलिटी हैज टू बी गिवन टू द पोरेस्ट ऑफ द पोअर। मेरे ख्याल में वो इवन बीपीएल हो या बाकी हो, शायद उनको अगर होता तो अच्छा होता, लेकिन जो किया गया है दैट इज फॉर। उमर अब्दुल्ला साहब जब चुनाव के दिनों में स्टेज पे चढ़ते थे, ये बोलते थे मैं बिजली फ्री सबको दूंगा, मैं राशन सबको दूंगा, मैं गैस सिलेंडर सबको दूंगा, मैं पेंशन सबको दूंगा। तो वो सब कहाँ गया आज? मैं और 2-3 सवाल उमर अब्दुल्ला साहब से आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा। मुझे बताइए, डेली वेजर्स के लिए बहुत रोना रोते थे आप, कहाँ गई आपकी डेली वेजर्स के लिए कोई स्कीम? बताइए क्या रखा आपने इस बजट में डेली वेजर्स के लिए? 1 लाख लोग जब सड़कों पे थे, आप तो बड़ा चिल्ला रहे थे, डेली वेजर्स के लिए तो आप बड़ी छाती पीट रहे थे। क्या किया उनके लिए आप मुझे बताइए। जम्मू कश्मीर के लिए आप बोल रहे हैं कि अनएम्प्लॉयड बहुत लोग हैं, अनएम्प्लॉयड। इल्तिजा मुफ्ती इस बजट पे क्या कुछ कह रही हैं, आपको सुनाते हैं सीधा। श्रीनगर में यहाँ पर भी क्या आपको लगता है इस प्रोसेस से जो आपका दावा है, जो आप चाहते हैं वो पूरा होगा? देखिए, बूंद बूंद से ही तो मतलब समंदर बनता है ना। व्हाट वी आर ट्राइंग इज, ये मेरा बहुत स्मॉल एफर्ट है कि मैं जाके हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सिग्नेचर कैंपेन स्टार्ट करूं, जिससे लोगों में अवेयरनेस आए कि ड्रग्स और शराब बिल्कुल, वो हमेशा दे शुड से नो टू ड्रग्स एंड अल्कोहल बोथ। बजट का हम दिख रहे हैं, जैसे ड्रग्स हो या शराब को भी आप कहा जा रहा, पहले से ही ड्रग्स हर घर दस्तक दे चुका है। शराब को सपोर्ट नहीं किया गया, वो शराब भी आम हो जाएगा। किस तरह आप देखती हैं? ये बहुत गलत है, और आप जानते हैं ड्रग्स और बेरोजगारी का एक कनेक्शन है। जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट है, ऑलमोस्ट 40%। जब हमारे इतने नौजवान 4 डिग्री हासिल करे हुए घर पे बैठे हैं, आप लोग जानते हैं एग्जाम भी सारे स्क्रैप हो रहे हैं, उसकी वजह से इतना डिप्रेशन हो गया कि ये ड्रग्स और शराब में जा रहे हैं। तभी हम चाहते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ ड्राई स्टेट, जैसे गुजरात है, जैसे बिहार है, जैसे नागालैंड है। और हम तो एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है। जम्मू कश्मीर को ऋषिवर, पीरवर कहा जाता है, तो हमारी भी अपनी सेंसिटिविटीज है, कल्चर है, कस्टम है, दैट शुड बी रिस्पेक्टेड एज वेल। बजट का भी अगर आपको कुछ पूछना पूछिए। हुआ है जिस तरह से बजट पेश किया, अब किसी और को पहले सवाल। बिल्कुल, अगर आप एनसी के मंशूर को देखेंगे, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा था कि डेली वेजर्स को वो रेगुलराइज करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज हो, कोई और भी डेली वेजर हो। लेकिन हम जानते हैं आज के बजट में डेली वेजर्स के लिए कुछ नहीं था। वी अंडरस्टैंड कि जम्मू कश्मीर एक यूटी है, शायद एनसी के हाथ भी बंधे हुए हैं, लेकिन उनने जो इतने बड़े बड़े वादे किए, अपने मंशूर में दावे किए, वादे किए, उस पे उनने आज बिल्कुल डिलीवर नहीं किया है। आपको लग रहा है कि यू टर्न लिया है आफ्टर इलेक्शन के बाद? यू टर्न नहीं, दूसरी डायरेक्शन में वो चले गए हैं। सो इट इज अ कंप्लीट रिवर्सल। जो उन्हें मंशूर में प्रॉमिस किया 1 लाख नौकरियां, गैस सिलेंडर नहीं दिया। आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी पे भी कितने राइडर्स लगे हैं कि जो कुछ राशन हो, AAY फैमिलीज हो, पहले जो राशन AAY फैमिलीज थे उनमें से 1.5 लाख लोगों को निकाला। अब ओनली 5% ऑफ द पॉपुलेशन विल गेट दिस 200 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द राशन। सो इट इज, the budget is quite disappointing to be honest. खवातीन के लिए कुछ अच्छा राहत देखने को मिल रही है। जी बस ट्रैवल वगैरह फ्री रखा, क्या कहेंगे? कैसे देख रहे हैं हम इस चीज को कि बस को जो है फ्री कर दिया गया? देखिए, गवर्नमेंट बसेस कितनी प्लाई होती हैं आप मुझे पहले बताइए, बट दिस इज अ वेलकम स्टेप। मैं खुद लड़की हूँ, मैं जानती हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना खासतौर से लेडीज के लिए कश्मीर में थोड़ा सा टफ होता है, बिकॉज आपको अपना कंफर्ट चाहिए, स्पेस चाहिए। बट आई रियली विश कि दिस वाज डन इन अ बेटर मैनर, क्योंकि हम खुद जानते हैं यहाँ सरकारी बसेस कितनी कंप्लाई होती है। थैंक यू। इल्तिजा मुफ्ती काफ़ी नाराज़ नज़र आई और उन्होंने ख़ास तौर पे इस बजट पे अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। न सिर्फ इल्तिजा मुफ्ती, न सिर्फ PDP, बल्कि दूसरी पार्टियां भी खासी नाराज़ नज़र आ रही हैं। अलग अलग पार्टियों का अलग अलग रद्द-ए-अमल, और ये सियासी भी हो सकता है, पर्सनल भी। लेकिन बजट पे क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। यही कहना चाहूँगा कि जो आज इन्होंने जब बजट पेश किया हुआ है, व्यापारी वर्ग के लिए देखें तो कुछ नहीं, खोखले दावे रहे। आज आप देखें डेली वेजर के लिए तो खोखले दावे रहे। और मैं ये कहूँगा कि इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर सरकार बनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया और सरकार में आए। आज सरकार बनाने के बावजूद भी इन्होंने लोगों को बोला था कि हम बिजली देंगे, पानी देंगे, और कई वादे किए हुए थे कि इन्होंने ये भी बोला हुआ था कि हम डेली वेजर्स को पक्के करेंगे। आज आप देखिए डेली वेजर्स बिल्कुल पक्के नहीं हुए, और लोगों को आज इतनी निराशा है इनके ऊपर कि आज आप देखें कि आज हमारा युवा वर्ग
जो नौकरियों की तलाश में था कि सरकार बनेगी और हमें कुछ नौकरियां मिलेंगी, हमारा रोजी रोटी का कोई सिस्टम चलेगा, आज आप देखें कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है। खोखले दावे करने वाली ये सरकार, और ख़ासकर मैं जो इंडिया सरकार जो हमारी रियासत में बनी हुई है, ये बिल्कुल बेवकूफ़ सरकार। आज हमें जो 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर का बजट पेश हुआ, इसमें खासकर हम व्यापारी लोगों को, नौजवानों को बड़ी उम्मीद थी कि शायद व्यापारी लोगों के लिए के हित में ये बजट होगा, जहाँ स्पोर्ट्स, जहाँ हमारे जो बच्चे नौजवान साथी हैं उनके लिए कोई नई स्कीमें निकाली जाएंगी। लेकिन बजट देखने के बाद हम लोग बड़े मायूस हुए, क्योंकि सिर्फ चंद चीज़ों को ही उन्होंने बढ़ावा दिया है। बाकी मेन जो चीज़ें थी हमारी, जैसे पानी का रेट बढ़ा हुआ है, बिजली के रेट बढ़े हुए हैं, गरीब लोगों के लिए महंगाई के जैसे रेट बढ़े हुए हैं, और उसके बाद हमारे जैसे कुछ बच्चे जो जैसे स्पोर्ट्स के कुछ बच्चे खेलने जाते हैं, उन्हें मात्र 100 रुपया दिया जाता है एक बच्चे को, उसमें भी आज का 100 रुपये तो एक टाइम की रोटी पूरी नहीं होती है। मतलब इस ढंग से अगर ये बजट सबको देख कर निकाला जाता तो शायद मैं समझता कि जम्मू कश्मीर में खुशहाली के दिन आते। लेकिन ये जो बजट है, ये मेरे को लगता है सिर्फ एक समुदाय को खुश करने के लिए ही निकाला गया है। बिल्कुल, आज सरकार ने अपना बजट पेश किया है। बजट को अगर हम उस तरीके से देखें तो कुछ नया तो है नहीं, पुराना तो सब सेंटर की तरफ से जो स्कीम चल रही हैं वही चल रही हैं, पर स्टेट की जो गवर्नमेंट है, जिन पे हमारे लोगों को, आम जनता को बहुत उम्मीदें थी, उन्होंने कुछ नया नहीं दिया। और बात करेंगे वुमेंस के लिए तो क्या नया दिया है। अब वुमेन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे वो कह रहे हैं कि हम आपको फ्री ट्रांसपोर्टेशन देंगे वुमेंस को, जो गवर्नमेंट बसेज होंगी। पहले सरकार को ये पता है कि गवर्नमेंट बसेज किस किस एरिया में चल रही हैं और कितनी चल रही हैं। आप अगर लेडीज़ जो हैं, गांव की लेडीज़ हैं, और जो हमारी जो जोग्राफिकल कंडीशंस हैं, या जो हमारी यहाँ पर टोपोग्राफी है J&K की, हिली एरिया मैक्सिमम है। हिली एरिया में आपने देखा है कितनी आपने बसेस दी हैं, आपने राहत किन लेडीज़ को देनी है वो आपने कभी सोचा नहीं। आपने एक बता दिया कि हम एक राहत, फिर आप देख रहे थे पिछले 5 से 10 सालों के बीच में हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, कुक जो स्कूल में लगे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सड़कों पे हैं। आपने उनके लिए कुछ किया? उनकी सैलरी बढ़ाई? उनका जो आप कहते हो कि जो उनको एक गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है थोड़ा सा भी, जो भी, वो आपने कुछ उनका बढ़ाया? कुक का आपने सोचा कि 1000 से 2000 रुपया करना चाहिए? तो फिलहाल कुछ तबके की नाराज़गी आप कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि हाँ, ये बजट ऐसा है जिसपे फौरी तौर पे शायद रद्द अमल 2 ही लोग दे सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां या फिर वो लोग जिसे कहीं ना कहीं उन्हें एक फिट कर दिया जाए किसी एक सेक्टर में कि भाई तुम्हें ये बोलना है। लेकिन सच्चाई इसके अलावा भी होती है, यानी कि ये नहीं कह रहा हूँ कि जो ये लोग बोल रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं, ज़ाहिर है कि ये ज़्यादा समझदार हैं और अपना अच्छा बुरा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ अभी तो प्रपोजल है, इसके ऊपर गौर किया गया है, प्रीवियस बजट पे गौर किया गया है, उनकी बारीकियों पे गौर किया गया है, जिस सेक्टर पे बात हो रही है उन तमाम तर चीज़ों पे गौर किया गया है। और जो बजट उमर सरकार ने पेश किया है, क्या आपको लगता है कि क्या उमर सरकार ने उस पर कोई भी प्लान नहीं किया होगा, कोई भी एक रिसर्च नहीं की होगी? ये ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक सरकार है और मुद्दतों से सरकार चलाते आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। एडवोकेट शौकत अली साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं PDP से, और हुसैन खान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। सर इस्तकबाल है आपका। एडवोकेट नीलोफर मसूद साहब हमारे साथ NC से जुड़ी हुई हैं। शौकत साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा सीधा, और जिस तरीके से रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं, पहले आपका रद्द-ए-अमल, आपका स्टेटमेंट इस बजट में। शुक्रिया सर। देखिए, मैं ये कहूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अपना सिलेबस सेट किया था असेंबली इलेक्शंस में, सिलेबस यानी कि अपना मैनिफेस्टो, मुझे लगता है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस फेल हो चुकी है। यानी कि जो सिलेबस था उस सिलेबस के मुताबिक कुछ भी नहीं किया। उसका मुझे लगता है, जहां तक उसका कारण ये हो सकता है कि या तो उमर साहब से जो चीजें ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर हैं वो शायद कहीं नहीं सेटल हो पाई, या फिर कोई एक्सरसाइज नहीं की है इस बजट के ऊपर। हालांकि हमें मालूम है कि जम्मू कश्मीर यूटी का बजट जो है वो दिल्ली तय करती है, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की सरकार भी अगर बजट लाती है असेंबली में तो थोड़ी एक्सरसाइज करके लाए, और लोगों की जो जरूरियात है उसको मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा इग्नोर किया गया। इन्होंने जब सरकार में आए तो इन्होंने ये कहा कि हम 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री देंगे। आज क्या बात कर रहे हैं ये?
और उसके ऊपर कितने बड़े राइटर्स लगे हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये भी मतलब आप ये समझे ये फेलियर रहेगा। ये मेरी आज की बात आप याद रखेंगे, ये फेलियर रहेगा। ये कहते हैं जनाब, अच्छा इन्होंने कहा 12 सिलेंडर फ्री देंगे, कोई बात नहीं किया उसके ऊपर। ये तो रोजमर्रा के लोगों के मसाइल है ना, ये रोजमर्रा के लोगों की जो है ये जरूरत की चीजें हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स के ऊपर पॉलिटिक्स की है। पिछले 6 साल बीजेपी ने पॉलिटिक्स की, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने और भी पॉलिटिक्स की, लेकिन आज इस बजट में दिल्ली ने तो उनको इग्नोर किया ही किया है, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार के पास भी कोई उनके लिए राहत का कोई आज मैसेज नहीं था। इसके अलावा आप देखें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मैं आपको बताता चलूं कि ये कहते हैं जी हमने वुमेन्स के लिए जो है वो बस फीस लगाई है। अभी मैं सुन भी रहा था, कोई लेडी वहां बात कर रही थी। सर मुझे ये बताइए कि मैं डिस्ट्रिक्ट रजौरी की बात करूं, डिस्ट्रिक्ट रजौरी में कितनी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो वो सरकारी बसेस हैं वो कितनी है, मुझे ये बताएं। मतलब ये बगैर एक्सरसाइज के की जो है ना, एक्सरसाइज के बगैर बनाया गया बजट है। आपके पास बसेस ही नहीं है, फ्री कहां से लगाओगे भाई? तो आप लोगों ने क्यों नहीं लगवाया था शौकत साहब इससे पहले बसेस? आज अगर ऐलान हो रहा है तो पहले लगाए होते तो शायद ये हुकूमत फायदा उठाती। ये सवाल तो आपको सरकार से पूछना चाहिए, मुझसे पूछ रहे हैं आप। ये तो मैं इससे पहले शौकत साहब आप भी सरकार में थे, अभी तो 2-4 महीने हुए हैं इस सरकार को आए हुए, जाहिर सी बात उनसे भी पूछेंगे, लेकिन सवाल इससे पहले आपसे इस वजह से पूछ रहा हूं क्योंकि इससे पहले आप ही हुकूमत में थे, तो ज्यादा बसें क्यों नहीं चलवाई थी आपने? देखिए सर, हालात वाक़ात की बात होती है। हो सकता है 2014 में हमारे पास इतना बजट नहीं हो जिसपे हम इतनी बसेस चला सकें, लेकिन जितना हमारे पास बजट होगा उतनी बसेस हमने लगाई। चलिए, ये एक मजाक समझिए, इसे बहुत ज्यादा सीरियस मत लीजिए। उस बजट का हमें जिक्र है और हमें अंदाजा है कि इस बजट के मुकाबले में कितना था। एडवोकेट नीलोफर साहबा बहुत देर से आपकी तरफ नहीं आया, सवाल यह है कि आप जवाब देना चाहेंगी जनाब एडवोकेट शौकत अली साहब? देखिए, एडवोकेट शौकत अली साहब उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जो इस वक्त अपोजिशन में है, तो मुझे लगता है कि इनका काम ही है अपोजिशन करना। हर किसी अच्छी चीज हो तो वो तो उसमें नुक्ते निकालेंगे ही, लेकिन मुझे लगता है आज एक हिस्टोरिकल डे है और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उमर अब्दुल्ला साहब को। हालांकि बहुत से लिमिटेशंस थे और लिमिटेशन हैं भी अभी, लेकिन उन लिमिटेशन के दायरों को मद्देनजर रखते हुए भी उन्होंने इतना अच्छा बजट दे दिया है और हर एक सेक्टर को टच करने की कोशिश कर दी है। जिस तरीके से 200 यूनिट पावर की इलेक्ट्रिसिटी की बात की जा रही है, आप जानते हैं कि AOI लोग में कौन सी कैटेगरी ऑफ पीपल, वो कौन लोग हैं जिनके लिए ये फ्री कर दी गई है। ये एक इनिशियल स्टेप है। हमने ये नहीं कहा कि हम यहाँ पर रुकेंगे। हमने जो मनसूबा दे दिया है वो मनसूबा 5 साल है। ये आज इनिशियल स्टेप है। इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ आने वाले वक्त में वो BPL को भी कवर कर लेगा और मिडिल क्लास को भी कवर कर लेगा। लेकिन कहीं शुरुआत हो गई और बहुत अच्छी शुरुआत हो गई है। रही राशन की बात, 10 किलो राशन दे देना, ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही कलेजा है कि इन्होंने इससे पहले भी जब सैलाब आया था तो इन्होंने फ्री राशन कर दिया था, पहले 6 मंथ्स फिर 1 साल के लिए। आज फिर वही इन्होंने कर दिखाया। हालांकि सैलाब तो नहीं आया है, लेकिन फिर भी लोगों के हित में AOI लोग जो बिल्कुल उस कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं जो वेरी पुअर लोग हैं, ये कोई 1% या 2% नहीं है। आप खुद जानते हैं उसमें कितनी कैटेगरी है, जिसमें 10 किलो का राशन एक पर पर्सन, एक फैमिली में नहीं बल्कि जितने भी उसमें अशखास होंगे उन सबको 10-10 किलो दिया जाएगा। उसमें साथ में अभी ये फ्री ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ बस सर्विस कहाँ है या गवर्नमेंट सर्विस इतनी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इनको बता दीजिए, इनके दौरे अख्तियार में इन्होंने फीमेल्स के लिए एक बस रखी थी। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात करूंगी, वो बस मैंने आज तक कभी देखी नहीं। इनॉग्रेशन तो उसका हो गया, सबने बड़े वो रिबन शिबन काट लिए, लेकिन आज की डेट में अगर वो देखेंगे वो गायब ही हो गई है सड़कों पर। कोई ऐसी जो बस है जो सर्विस प्रोवाइड करती, फ्री सर्विस फीमेल्स के लिए, जो इन्होंने इनॉग्रेट करके शुरू की थी, वो इन्हीं के दौर में खत्म हो गई।
तो ये ऐसी हमारी घोषणाएं नहीं है कि सिर्फ हम घोषणा के लिए घोषणा लोगों को कर रहे हैं, बल्कि हम वी मीन इट और ऑन ग्राउंड ये हम करके दिखाएंगे। लेकिन एडवोकेट नीलोफर साहब, मैं असल में इस वजह से भी थोड़ा सा हैरान हूँ। जी जी साहब, ये वही लोग हैं जो कहते थे जब मैनिफेस्टो आया, अरे भाई कैसे दे देंगे 200 यूनिट, कैसे कर देंगे फ्री राशन, तो ये वही लोग हैं। अब आज जब एक स्टेप हो गया है, अच्छा स्टेप उठाया है, तो इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब ये कहते नहीं भाई अब उसको क्यों दिया, इसको क्यों नहीं दिया। आप पहले उस शौक से बाहर आ जाइए जिस शौक में ये कहते थे आप भाई कैसे दे देंगे, मुमकिन ही नहीं, हो ही नहीं सकता, बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। तो मुझे लगता है कि अप्रिशिएट करना चाहिए। जहां तक इंडस्ट्रीज का सवाल है, चाहे एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, चाहे हमारी इंडस्ट्रीज है, लेदर है, वूल है, सबको टच करने की कोशिश की गई है। हेल्थ सेक्टर को जब यहाँ पर 8 इंडस्ट्रियल यूनिट्स बनेंगे तो आप खुद जानते हैं कि जो हमारे युवा है ये खाली खुद कफील नहीं हो जाएंगे, बल्कि ये दूसरों को भी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अभी ये बात कर रहे थे यहाँ पर डेली वेजर्स वगैरह की, इनसे पूछ लीजिए, आपकी सरकार भी रही, आपने तो उनके लिए कुछ नहीं किया। जो SOS था, जो हमारा SRO था 202, वो आपने लाया यहाँ पर, उसी की वजह से कैजुअल लेबर, डेली वेजेस, डेली रेट। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिचेस को दुरुस्त करके फौरन नीलोफर मसूद साहिबा को जोड़ लिया जाए और उसके बाद इनसे इनकी बात कंटिन्यू रहेगी। फिलहाल में हम आते हैं PDP लीडर जनाब एडवोकेट शौकत साहब से। शौकत साहब, जिस तरह की बातें हो रही, देखिए हमें पता है कि अंत्योदय योजना के तहत 95,000 लोग मुश्किल से जम्मू कश्मीर में बचे हैं। हमें यह भी पता है कि 1 लाख समथिंग करीब 30,000 आसपास लोगों को उस लिस्ट से बाहर खदेड़ दिया इस गवर्नमेंट ने। हमें यह भी पता है कि अब जिसके अंत्योदय योजना के तहत कौन लोग आते हैं जिनके पास 2 टाइम की सही से रोटी नहीं है खाने की, और जिनके पास रोटी नहीं है उनको बिजली कहां से मिलेगी, घर कहां से आएगा, कनेक्शन कहां से आएगा, तो फिर फ्री किस चीज का हुआ। मुझे ये भी पता है कि बसेस वगैरह की क्या सूरत हाल है, लेकिन मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि फिर ये हुकूमत ऐलान क्यों कर रही है। अगर क्या हुकूमत को ये सारी चीज़ें नहीं पता, हालांकि ये सवाल करेंगे हुकूमत के इस नुमाइंदे से, लेकिन मैं आपसे समझने की कोशिश करूँ, क्या हुकूमत के लोगों के पास ये पता नहीं है कि सिचुएशन क्या है जम्मू कश्मीर की? सर, आपका सवाल बहुत अच्छा है, बहुत एक मेन इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया है। देखिए, मेरा ये मानना है सर, ये बजट अगर ऑन द होल मैं कहूं इसको, तो ये बड़ा मायूस कुन है। और मायूस कुन बजट के रीजंस बहुत सारे हैं। और जो आपने ये सवाल किया कि ये हुकूमत कैसे ऐलान कर रही है, सर मैं आपको बताऊं, ये हुकूमत वैसे ही ऐलान कर रही है जैसे इन्होंने इलेक्शन में बिना सोचे समझे ये सारी चीजें जो हैं ये पब्लिक में सारे मैसेज दिए, और पब्लिक को कन्विंस करने के लिए हम आपको ये भी देंगे, ये भी देंगे, ये भी देंगे। जिस दलेरी के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने लोगों को उस वक्त कहा, उसी कॉन्फिडेंस के साथ आज इन्होंने बजट जब पेश किया है असेंबली में, आज भी ये कह रहे हैं। मुझे ये बताएं सर, ये कहते हैं 200 यूनिट बिजली जो है वो हम फ्री करेंगे इस कैटेगरी के लोगों के लिए। सर आप मुझे ये बताएं, ये लोगों के साथ धोखा नहीं है कि अगर नहीं, तो एनसी का मानना है कि हम तो आवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतर रहे हैं, ये तो सिर्फ PDP का काम है, अपोजिशन वो सवाल उठा। देखिए सर, लोग जो है वो बेहतर जज हैं, वो बहुत अच्छे से जजमेंट कर सकते हैं। आप सब चीजें जानते हैं। मेरा ये कहना है कि क्या आपके किसी रिकॉर्ड में कोई इनकी स्पीच, प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई इनकी ऐसी कोई एविडेंस है जिसमें यह कहा गया हो कि हम जम्मू कश्मीर में अगर सरकार में आएंगे तो हम जम्मू कश्मीर में AY कैटेगरी के लोग जो हैं उनके लिए हम 200 यूनिट बिजली जो है उसको फ्री कर देंगे? आप एक एविडेंस निकाल के लाइए, मैं मान जाऊंगा सर। देखिए नहीं, उस वक्त नहीं तो नीलोफर मसूद साहब आपके सामने मैं कह रही थी कि अभी शुरुआत हुई है और उन शुरुआत से हम उन लोगों को, यानी कि AY कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनको हमने लिया है, अंत्योदय वाले को, और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सर तो ये बात लोगों को पहले क्यों नहीं बताई? मैं इसी की तो बात कर रहा हूं, यही तो धोखा है। आप मुझसे भी वही कहते हो, आप BPL वाले से भी वही कहते हो, आप बिजनेस क्लास से भी वही कहते हो, AY वाले से भी वही कहते हो। हम सबने समझ के सबने वोट डाला ना, मतलब AY वाले ने भी वोट डाला है, BPL ने भी डाला है, बिजनेस वाले ने भी डाला है, जो मिडिल क्लास वाला उसने वोट सबने दिया, और इसी वादे पर दिया। इनके इसी तरह के सारे वादे जो थे उस पर मैंडेट दिया बड़ी ख्वाहिशात के साथ। आज आप कहते हैं कंडीशंस लगाते हैं।
ये होगा तो ये नहीं होगा, और पहले तो वो 1.5 लाख के आसपास सारे आपने डिलीट कर दिए। ये एक बड़ी सोच के साथ, मैं आपको बताता चलूं सर, बड़ी सोच के साथ इन्होंने पहले ये वाली एक्सरसाइज की कि इनको ये बहुत सारे लोग जो हैं इनको बाहर कैसे करना है, उनको किया डिलीट। अब जो थोड़े बहुत लोग जो बचे हैं उनके लिए ये इन्होंने कहा कि अब इनको बिजली जो है ये हम 200 यूनिट बिजली जो है ये फ्री दे देंगे। और मैं वसूख से कहता हूं ये नहीं हो पाएगा सर, ये इनसे ये भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा? वजह क्या है? ये कहते हैं राशन। सर मुझे ये बताएं, सिर्फ AAY कैटेगरी वाले जो हैं वो राशन लेते हैं या BPL वाले राशन लेते हैं? मिडिल क्लास वाले लोग जो हैं उनको भी राशन चाहिए। तो आप अच्छा ठीक है, मैं शौकत साहब, मैं आपसे, ठीक है, सवाल आपका जायज है, मैं पूछ ही लेता हूं पहले, उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूं। मुझे 1 मिनट दे दीजिए। नीलूफर साहब देखिए, 14 लाख करीब ये जो है होल्डर्स हैं। मैं समझता हूं AAY में करीब 95,000 के करीब लोग हैं, उनमें से भी आपने 1.5 या 1.30 के आसपास लोगों को शायद बाहर कर दिया। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि जिनके पास 2 टाइम की सही से रोजी नहीं है खाने के लिए, घर नहीं है, कनेक्शंस नहीं है, वो उनको कैसे आप मुफ्त में दे रही है? पर्रा साहब ये सवाल पूछ रहे थे। देखिए, जो आप 1 या 1.5 लाख लोगों को हटाने की बात कर रहे हैं, आपको शायद याद होगा विद इन कुछ दिनों के अंदर ही एक और घोषणा हुई कि जो ये लोग हैं, अगर वो मुस्तहिक है, सही हक में अगर वो मुस्तहिक है, वो अपने पोर्टल पर फिर से अपना नाम चढ़ाकर उनकी रिवेरिफिकेशन हो जाएगी और उनको फिर उस AAY का इस्तीफादा दिया जाएगा। तो दरवाजे किसी ने बंद नहीं किए हैं। क्या आप या हम ये नहीं जानते कि BPL कैटेगरी में ऐसे भी लोग हैं जो उसके मुस्तहिक नहीं है, लेकिन असल लोगों का हक खाकर वो BPL कैटेगरी में बैठे हुए हैं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव जो इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है, तो वो इन्वेस्टिगेशंस भी जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद उस कैटेगरी को, मैं पूरी उम्मीद हूं उसको भी लिया जाएगा। एट वेरी फर्स्ट इंस्टेंस अगर एक स्टेप उठाया गया है लोगों के हित में, एक गरीब तक के हित में, जिसको कभी किसी ने एड्रेस ही नहीं किया है आज तक, अगर उसको एड्रेस करने की कोशिश की गई है, तो मुझे लगता है ये चीज है, ये उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, न कि ये कहना भाई उसको क्यों दे दिया। वो तो सबसे ज्यादा मुस्तहिक है। अगर वहां से आपने स्टार्ट किया है, आपने लास्ट से स्टार्ट किया, जो बेचारा है उस कैटेगरी में आते हैं जिनको कोई इस्तीफादा मिलता नहीं है। अब अगर हमने वो स्टार्ट किया बनिस्बत कि आप उसको अप्रिशिएट कर रहे, आप ये कह रहे कि उनको कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा उनको? ये सवाल मेरा शौकत साहब आपसे भी रहेगा। भाई ठीक है, अगर अंत्योदय योजना के तहत जो लोग आते हैं उनको मिल रहा है, भले ही वो कम तादाद में हो, भले ही वो कुछ भी हो, चलिए ठीक है, वो उस लायक है, उनको मिलना भी चाहिए। सवाल ये है कि फ्री में बिजली ही क्यों चाहिए आपको? कितना जो है मतलब इस चीज़ पे इतना ज़्यादा फोकस्ड क्यों है आप? ख़ास तौर पे इस वजह से क्योंकि अगर आप एक बड़ी पार्टी हैं, मुद्दतों से यहाँ पे चल रहे हैं, तो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ पे होना चाहिए, GDP पर कैपिटा पे होना चाहिए, ओवरऑल जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट कैसे होगा, आगे के प्लानिंग क्या, उस पर आप हुकूमत को घेरते हैं तो शायद ज़्यादा अच्छा। वो बिजली पानी छोटे छोटे मुद्दे नहीं लगते हैं जो आपके शान निशान नहीं है। शौकत साहब देखिए सर, मैडम कह रही हैं कि आप अप्रिशिएट करें। देखिए बात एप्रिसिएशन की नहीं है, वो तो है ही है। आपने अगर एक कैटेगरी के लिए किया है, मखसूस लोगों के लिए कुछ किया है, तो बहुत अच्छी बात है। मेरा जो मानना है, मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपने इस तरह की कोई कंडीशनल बात आपने इलेक्शन में कही थी या अपने मैनिफेस्टो में लिखत में कहीं कही थी आपने? मैं ये कह रहा हूं, आप लोगों के साथ धोखा करते हैं। आपने ये नहीं लोगों से कहा तब कि हम पहले AAY से शुरू करेंगे, फिर BPL पर आएंगे, फिर मिडिल क्लास पर आएंगे, फिर उस पर आएंगे, फिर उस पर आएंगे। ये तो धोखा है, ये साफ धोखा है। और उसके बाद आपने बिजली की बात की। सर मैं ये बताता चलूं आपको, बिजली के जो हालात हैं वो इतने मतलब इतने उलझे हुए हैं। आप देखेंगे पिछले दिनों एक लोक अदालत में हम बैठे थे और उस लोक अदालत में मैंने दर्जनों लोग ऐसे देखे जो हमारे पास आए जिन्होंने ये कहा, जो विडोज थी और इस तरह के गरीब लोग थे जिनको 2 टाइम का खाना मैसर नहीं है, वो कहते हैं हमारे बिल्स हैं जनाब 20-20 हजार, 25 हजार, 50 हजार, और हमारे घर में बल्ब जलता है 1 या 2। मतलब निजाम इतना खराब है कि जिसमें XCM को पूछो आप, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर है, कहता मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, उससे नीचे की बात ही मत करें आप। तो मुझे ये बताएं कि हुकूमत का क्या काम होता है?
जो लोग 2 टाइम का खाना नहीं खा सकते हैं, आप उनको 50-50 हजार का बिल दे देंगे। आप मुझे ये बताएं कि अंधेरे में तो कोई नहीं बैठना चाहता है, लेकिन इंसाफ अगर करें तो इन लोगों के साथ भी करें ना, कि भाई आप 50-50 हजार रुपए का बिल आपका जो है डिपार्टमेंट देता है, आप चलिए वो एक मेजर है जिस पे हम जरूर ध्यान रखेंगे। नीलूफर मसूद साहब, चूंकि हम वक्त की किल्लत रहेगी, हम चाहेंगे कि आप दोनों हजरात से ज्यादा चीजें हम जानें। सवाल ये कि आपने कहा था यूनिवर्सिटी लेवल तक हम फ्री में एजुकेशन देंगे। एजुकेशन सेक्टर पे कुछ खास बातचीत होती हुई नजर नहीं आई इस बजट में। देखिए, खाली एजुकेशन सेक्टर ही नहीं, मुझे लगता है कि हर किसी सेक्टर को टच करने की कोशिश की गई है, जिसमें अपग्रेडेशन ऑफ स्कूल्स वगैरह है, ये भी उन्होंने कहा हुआ है। साथ में एक इम्पोर्टेंट नुक्ता मैं यहाँ पर रखना चाहूंगी कि जो ओल्ड एज पेंशन है, जो इस सरकार ने बंद करवाए थे और बेचारे लंबी कतारों में कुछ की डेथ भी हो गई अपने वो वेरिफिकेशंस को लेकर, तो उनका जो ये है, उनके हक में जो है बिलो 65 ईयर्स 1250 यानी कि 250 चढ़ाया गया है। दूसरे जो 65 से लेकर 80 की कैटेगरी में आते हैं उनको 500, और फिर जो अबो 80 आ जाते हैं उनको 1000 रुपया चढ़ाया है। वो भी एक वेलकम स्टेप है। उतना ही नहीं, जो मैरिज असिस्टेंस है पहले 50,000 दिया जाता था, अब वो 75,000 किया गया है। तो मुझे लगता है ये उस तबके को टच करने की पहली बार आज बजट में कोशिश की गई है, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। एक वो इन्फिल्ट्रेशन का जो दिन ब दिन इंक्रीज हो रहा है, प्राइजेस हमारे, उनको वो उससे कूप अप नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है ये पहली बार है कि इस बजट में कोशिश की गई है ज्यादा से ज्यादा युवा, आप कहेंगे युवा कैसे, क्योंकि जब इंडस्ट्रीज बनेंगी, एक तो वो खुद कफील भी हो जाएंगे और रोजगार भी दे सकते हैं। साथ में हेल्थ सेक्टर में कितनी ही चीजें, जैसे छोटी चीज हमारे लिए MRI है, लेकिन वक्त पर वो बहुत बड़ी चीज है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल में MRI का होना, इसी तरह डायलिसिस के लिए फैसिलिटी होना, तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस बजट में रखी गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर को आप किस तरीके से डेवलप करेंगे, साथ में रेवेन्यू कहां से जनरेट होगा, इसमें भी कोशिश की गई है, जिसमें टूरिज्म को टच किया गया है, एग्रीकल्चर को टच किया गया है, उसमें पैसा एलोकेट किया गया है। साथ में स्पोर्ट्स को हम किस तरीके से तरजीह दें, किस तरीके से हम डिफरेंट एरियाज जो हैं, चाहे उसमें जम्मू है या कश्मीर है, मुझे लगता है पहली बार जो रीजनल डिस्पैरिटी है, इसको मद्देनजर रखते हुए ये बजट जो है सामने रख दिया गया है। बैलेंस करने की, चेक एंड बैलेंस करने की कोशिश की गई है। तो जो लोग सियासत करते हैं, ये तो इसके बाद भी सियासत करेंगे। पहले ये था कि भाई मैनिफेस्टो में कुछ हो ही नहीं सकता है, अब जब शुरुआत हो गई, अब ये कहते ये भी नहीं हो सकता है। तो इनको कहिए कि इत्मीनान से रहे, आहिस्ता जो दिन आने वाले हैं, शुरुआत बहुत अच्छी हो गई है और अभी बजट सामने है, इस पर डिस्कशंस भी होंगे, क्योंकि बिल्कुल। देखिए, अभी टूरिज्म पे और एग्रीकल्चर पे, मैम, टूरिज्म पे और एग्रीकल्चर पे इस हुकूमत ने ज़्यादा अच्छे से फोकस किया है। मैं पिछली हुकूमत का देख रहा था कि उन्होंने क्या कुछ किया था, उसमें रोज़गार को उन्होंने भी छोड़ दिया था। उसके साथ साथ जिस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी वो ये था कि डिपेंडेंसी स्टेट के बजाय सेंटर पे ज़्यादा थी। आपको लगता है कि इस बजट में स्टेट पे ज़्यादा डिपेंडेंसी होनी चाहिए, क्योंकि हम क्या पैदावार कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, अपने अंदर हमारे पास क्या वसाइल हैं, ताकि हम दूसरों से कहीं ज्यादा अपने आप पे भरोसा कर पाए? बिल्कुल कोशिश की गई है। मुझे लगता है इस बजट में पहली बार कोशिश की गई है कि अपने हमारे वसाइल हो, जिसमें एग्रीकल्चर के लिए जो 815 करोड़ का अमाउंट जो है एलोकेट किया गया है, ये एग्रीकल्चर यूनिट्स के लिए किया गया है। साथ में डिवल फार्मिंग, जो एक ही हमारा क्रॉप निकलता है एक साल के लिए, ताकि 2 क्रॉप हम यहाँ पर प्रोड्यूस कर सके, तो कोशिश की गई है। जैसे पश्मीना है, जैसे हमारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है, इनको हम कैसे आगे चलाएं, हमारा लेदर है, हमारा वूल है, तो इनसे हम कैसे रेवेन्यू जनरेट करें। तो कोशिश की गई है कि मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट हो, ताकि हम डिपेंडेंसी जो हमारी सेंटर पर रहती है, इसको आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाए। आप खुद जानते हैं कि इस मौजूदा यूटी पर कितना लोन ऑलरेडी हमारा है। बिल्कुल, वो डेट पे भी हम बात करें, कर्जे के ऊपर तो एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि वो तो मेरा सर चकरा गया जब मैंने उस चीज को देखा। मैं खासतौर पर आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा जनाब शौकत साहब, और मैं डेली वेजेस का जो मुद्दा है, खासतौर पे PDP जो उठा रही है, उसके हवाले से मैं तफसील से जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ठीक है डेली वेजेस का जहां पर आप, हाँ ठीक है, बोलिए, आप ही जवाब दीजिए।
जी आमिर साहब, मैं जवाब दूं इसका? जी हाँ, बोलिए। डेली वेज और कैजुअल लेबरर्स के लिए ऑलरेडी उमर साहब ने आज के जो बजट सेशन में उन्होंने कहा कि एक डाटा बेस जो है इनके लिए कैजुअल लेबरर्स, ताकि ये पता चल जाए एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैजुअल लेबरर्स कितने हैं, हमारे डेली रेटेड जो डेली वेजर्स हमारे हैं ये कितने लोग हैं, अपॉइंटिंग अथॉरिटीज कौन थी, कितने अरसे से ये लोग हैं, कहीं 10 साल से, कोई 20 साल से, तो किस तरीके से, ताकि फेज वाइज मंशा ये है, जहां तक मुझे लगता है कि मेरा पर्सनल व्यू भी हो सकता है, ताकि फेज वाइज उनको किया जा सके। तो ये सारा डाटा जो है, ये डाटा जब भी आ जाएगा तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलात भी जो है वो हल हो जाएंगे, क्योंकि एक उसके लिए भी शुरुआत की गई। ऐसा नहीं कहा गया कि बिल्कुल नकार ही दिया गया उनको, ताकि एक बीच में भी कई मरतबा ऐसे देखने को मिले कि कुछ ऐलानात किए गए, चंद पल के लिए ऐलान हुए थे और उसके बाद में जो है उसे ख़त्म कर दिया गया। हालांकि ठीक है, वो ग्लिचेस समझ करके थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज किया जा सकता है। ठीक है, मैं शौकत साहब काफ़ी देर से आपकी तरफ आया नहीं। देखिए, मैं ये सारी चीज़ें इस वजह से जानने की कोशिश कर रहा था हुकूमत के नुमाइंदे से, ताकि ये समझ में आ जाए कि आगे का प्लान क्या है। भाई अब देखिए, चाहे आपकी हुकूमत ने हो या मौजूदा हुकूमत ने हो, जम्मू कश्मीर के छोटे छोटे मुद्दे शायद हम साइडलाइन करके, नज़रअंदाज करके, लड़के झगड़ के छोड़ भी देंगे, लेकिन जो ओवरऑल आगे बढ़ने का 5 साल का रोड मैप होगा, कम से कम वो तो हमें समझ में आए। मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि आपको इस बजट में क्या 5 साल के लिए डेवलपमेंट का कोई रोड मैप नजर नहीं आता? शौकत साहब, जैसे मैंने पहले कहा है कि मायूस कुन है, यानी कोई एक्सरसाइज करने के बाद जो है कोई प्लानिंग के साथ जो है ये बजट जो है ये नहीं पेश हुआ है। उसके रीजंस क्या हो सकते हैं ये हुकूमत जानती है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप एक पॉलिसी तो मरतब करें। आपने कहा डेली वेजेस की बात ही अगर कर लें, आपने कहा हम डेली वेजेस के साथ पूरा इंसाफ करेंगे, तो आपने कहा, अभी मैडम कह रही थी लोफर जी के हमने शुरुआत कर दी है, तो मैडम शुरुआत सब पर कर लीजिए ना। ये भी बहुत पुराना और बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट इश्यू है इसका, कैजुअल लेबर्स का और डेली वेजर्स का, तो इनका भी कुछ स्टार्ट कर देना चाहिए था। हुकूमत को एक पॉलिसी तो मरतब कर देनी चाहिए थी। इनके ऊपर ये तो कह देना चाहिए था कि हम एक पॉलिसी मरतब कर रहे हैं, उसके तहत हम इस तरीके से जो है इनको हम एब्जॉर्ब करेंगे, इनको परमानेंट करेंगे, इनको क्या करेंगे, उनको भी थोड़ा सा जो है वो हौसला अफजाई हो जाती है उनकी। आप बाकी दूसरे सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, आपने हेल्थ सेक्टर की बात की है, आपको पता है सर यहाँ पर नहीं, बिल्कुल। देखिए शौकत साहब, बिल्कुल हेल्थ सेक्टर का मुद्दा एक बहुत ठीक है, पहले आप अपनी बात पूरी रखिए, उसके बाद मैं सवाल लेकर के आता हूं आपकी तरफ। जी, मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जो नॉर्मल जो आपको फ्लूइड की जरूरत होती है या नॉर्मल इंजेक्शंस की जरूरत होती है सर, वो भी यहाँ पर आपको फ्री नहीं मिल सकता है। तो एक पॉलिसी होनी चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपको क्या क्या जो है वो अवेलेबल रहेगा, और आपके पीएचसीज में या उससे ऊपर जीएमसी लेवल पर आपकी जो आपका ट्रीटमेंट जो है उसमें आपको क्या क्या, किस कैटेगरी को क्या सहूलियात जो है वो मुहैया होंगी, उसके ऊपर कोई बात नहीं है। अगर उसी हेल्थ डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले लोग हैं, अगर आप उनकी बात करें तो वो भी मुश्किल में है आज के दौर में, इस महंगाई के दौर में। जो आपने आशा रखी है, मुझे बताएं आप उनको क्या देते हैं? नहीं, देखिए, मौजूदा हुकूमत ने अभी एक मोटा मोटा खाका पेश किया है और इसकी गहराइयां तो यकीनन धीरे धीरे ही समझ में आएंगी। हुसैन खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इकोनॉमिस्ट हैं जम्मू कश्मीर से। हुसैन खान साहब, मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूँ, छोड़िए पॉलिटिकल पार्टियां अपनी एक सियासत को भी और कहीं ना कहीं तमाम तर चीज़ों को लेकर के चलेंगी, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, आवाम का फैसला होता है वो, लेकिन मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि ये बजट किस नज़र से आप देख पा रहे हैं एज ए इकोनॉमिस्ट? The Chief Minister Umar Abdullah on Friday presented a zero deficit budget in the Jammu and Kashmir Assembly, announcing on outlay of rupees 1.12 trillion for 2025-2026 and emphasizing multi-sector welfare and development of the J&K. The 41,000 CR budget proposed for 2025-26 saw a significant dip in central assistance. I think Umar Abdullah also told the finance minister said that it is a roadmap for a new and prosperous J&K, reflecting
the aspiration of our people and laying a strong foundation for economic growth, social progress and sustainable development. इसको ओवरऑल जाहिर सी बात है, अगर आप इसको सम अप करना चाहेंगे तो ज़्यादा बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी आप एक इकोनॉमिस्ट की नज़र से मैं आपसे पूछूंगा, क्या इसे हम किसी हद तक, क्योंकि लंबे समय से हमने जम्मू कश्मीर की परेशानियां देखी हैं, लोगों की परेशानियां देखी हैं, अब जो फाइनली यूटी का पहला बजट आया है, इस हुकूमत का पहला बजट आया है, क्या आपको लगता है कि इससे आने वाले 5 साल में कुछ बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है लोगों के लिए? देखिए, ये अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं कि हमारी जो इस वक्त जो सरकार बनी है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी यूटी वाला जो इशू मसला है, सबसे बड़ी बात है ये जो अब आप देखिए, हम लोग इन जम्मू कश्मीर के लोग अपना, मैंने पीछे भी आपको कहा था कि हम लोग अपना बजट नहीं बना पाए। खैर, अब जो भी आया है उसमें आपको डिटेल तो आज आई है, जो आज के फ्राइडे का आपने देख लिया होगा कि जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू रिसेप्ट्स जो है वो आपने देख लिया कि 97 जो भी है वो आपको, अगर कैपिटल रिसेप्ट्स आप उसमें देखेंगे या सिमिलरली जो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखेंगे, जो एस्टिमेट करेंगे आप, तो और कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी जो आप देखेंगे तो उससे आपको देखिए क्या है, देखिए जो डिटेल एस्टिमेट इज द ग्रोथ रिसेप्ट्स जो है आर एस्टिमेटेड एट रुपीज 14309.99 करोड़ इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ और ड्राफ्ट ऑफ रुपीज 28,000 करोड़। अब आप देख लीजिए इसको बड़े गहराई से जब आप देखेंगे तो द जेएंड के जो हमारे रिसोर्सेज है, रेवेन्यूज है, बोथ टैक्स एंड नॉन टैक्स आर एस्टिमेटेड रुपीज 31,905 करोड़। एडिशनली जो 41,000 करोड़ इज एक्सपेक्टिंग एज सेंट्रल असिस्टेंस and rupees 13522 crore as CSS and PDP for Jammu and Kashmir. Overall proposed the tax GDP ratio and 75% for 2025. मतलब इस तरह के अगर आकलन करते हैं हम चले जाएं तो शायद इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, और मैं ये चाहूँगा भी कि शायद इस चीज़ का, इस आकलन के लिए हमें थोड़ा सा और टाइम दिया जाए, क्योंकि हुकूमत पे सवाल उठाना बहुत आसान है, या अपोजिशन को सवाल के दायरे में ला खड़ा करना बहुत आसान है, लेकिन एक इकोनॉमिस्ट की नज़र से इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि उम्मीदों का बजट है, हम ये कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें हो सकता है बेहतर नहीं हुई होंगी, कुछ चीज़ें और बेहतर होने की ज़रूरत होंगी, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं चलो कुछ तो सही हुआ, क्योंकि जम्मू कश्मीर की हालत वैसे ही ख़राब है। जम्मू कश्मीर के पास अपनी जो ऑटोनॉमी है वो तक ख़त्म हो गई है। तो देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इस हुकूमत को क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं मशवरा देने के इसमें नहीं हूँ। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा लोगों से कि उम्मीद रखें, हौसला रखें, उम्मीद का दामन न छोड़ें, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा, और जहाँ पे हुकूमत को घेरने की ज़रूरत होगी उसके लिए हम हैं और ज़रूर घेरेंगे। शुक्रिया नीलोफर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, शौकत साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहतरीन बातचीत के लिए, और जनाब हुसैन साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त।